Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari, and we are here to discuss another set of general studies, history, mains questions in their full flow, full transparency, authentic answers, and they will help you to learn and get success in a true way. देखते हैं क्या लिखा है. How do you justify the view that the level of excellence of the Gupta numismatic art is not at all noticeable in the later time? कैसे justify करते हो कि वही बेस्ट आर्ट थी और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं? दोनों व्यू हो सकते हैं, हुआ लेकिन कम हुआ, ऐसा कहना उचित रहेगा. गोल्डन एज, एडवांस फाइनेंशियल इकोनॉमी, न्यूमिस्मेटिक आर्ट, मेटलिक कॉइनेज, गोल्ड कॉइन्स, बेस्ट क्वालिटी, इमेज ऑफ हिंदू किंग, गॉड एंड किंग, बोथ साइड engraved, समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा, साइज एंड क्वालिटी, गोल्ड कॉइन यूज, वंडरफुल. हो गया. Gupta is declined, economics too dwindled. Emergence of small power couldn't sustain flourishing economy like Pushyamithi's of Thaneshwar. Regional kingdoms more focused on establishing political stability, Chalukyas, Vakatakas, Pallavas in peninsular India. Limited patronage to art and artisans, engagement in wars. Later dynasties couldn't match the regional scale of Gupta's rule at almost pan-India level, thus fragmented economy. Therefore, Gupta age numismatic art became heritage wealth and epitome of artisan treasure of India. आंसर अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण है. बस मैक्सिमम ये हो सकता है कि आदमी ये बोले कि भाई मुगल आए थे, रुपया लाए, सल्तनत पीरियड में भी सिक्के तो थे ही. मतलब एक आध बोल सकता है कि सिक्के छपे, सिक्के बने हैं, लेकिन जस्टिफाई करने का कारण आई थिंक 10 में से 6 नंबर आने चाहिए. क्लैरिफाई हाउ मिड 18th century was beset with the spectre of fragmented polity, resembled a jigsaw puzzle pieces. United yet autonomous powers presented the major challenge for British East India Company colonization in India. Fragmented polity, multiplicity of regional and powerful kingdom, Maratha, Sikh, Hyder Ali, Mysore. Constant tussle to gain wider and wider the expanse of their kingdoms. Distinctive framework of administration like Peshwas in Marathas, Nizams of Hyderabad. Weakening of Mughal rule, turning more symbolic power led to the emergence of regional powers. Different beliefs and customs shaped political systems. Therefore, the fragmented polity became the strength naturally as each one specialized in itself. Okay, चलिए तो हम मतलब थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि हाँ सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, आपने बता दिया. आई थिंक 70 नॉट 70, आई थिंक 85% इट इज जस्टिफाइड. व्हाई endangered labor was taken by the British from India to other colonies? Have they been able to preserve their cultural identity over there? बहुत बढ़िया प्रश्न. Endangered laborers in other countries form the foundation of Indian diaspora abroad today, who are invaluable to India's growth story and human wealth. हाँ, हेरिटेज आप कह सकते हो. Their contribution are recognized and celebrated at प्रवासी भारतीय दिवस. Part of slave trade of the British to Latin America, Europe and Mauritius. Abundant and cheap labor dumped in plantation agriculture overseas. Coffee, tea plantation, sugar cane लिखना चाहिए साथ में. It was in a way human trafficking to exploit different colonies, their resources endlessly. Cultural identity and preservation. Gandhiji effort in South Africa against racial discrimination. Celebration of Indian festival. Tolstoy form. In present time, celebration of Diwali has become international festival due to constant efforts of endangered laborers and generations that followed. International Yoga Day is also testimony to it. Therefore, migrants of present day century have remarkable contribution to Indian identity and root going back to 1750. I think very wonderful written. प्रवासी प्रवासी भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है. और मॉरिशस में तो एक घाट भी है जिसका नाम ही है प्रवासी घाट. और उसी घाट पे जो है उस घाट को डब्ल्यूएचओ बोल रहा हूँ, उस घाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने भी रिकॉग्नाइज किया. इट इज हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज. और जो है गिरमिटियास कहते थे इनको, गिरमिटियास, इनको गिरमिटियास टर्म यूज किया जाता था. आज भी भोजपुरी, मैं तो मिला हूँ मॉरिशस से, मॉरिशस के बंदे तो भोजपुरी भी तो दे सीम लाइक अस. दे आर सो एक्साइटेड अबाउट देयर मदरलैंड इन देयर न्यू फादर और मदरलैंड. सो आप लिख सकते हो कि वहाँ यहाँ की भाषा, लिट्टी चोखा, यहाँ की रोटी, यहाँ के गाने, वहाँ के कल्चर में मैच होके बिल्कुल मिक्स हो गया. लेकिन आज भी उन्हें प्राउड है हमारे मतलब अपने आइडेंटिटी के ऊपर. तो आपने लिखा है, आई थिंक फेयरली डन. लिटिल बिट ऑफ 1 or 2 facts are required. The Bhakti movement received remarkable reunification with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bengal became epicenter to spread Bhakti ideas. Chaitanya Mahaprabhu, a remarkable reorientation, wide adoption of ideas in India, Eastern Arm, Bengal, Bihar and Odisha. Overpowered the tantric ideas with bhakti. Oh, loving devotion to supreme path to God. Wow. Religious inclusivity, rejected caste rituals, caste hierarchies, allowing backward section to equally participate. Sankirtan,
became the key method of worship, inspired community level participation, epitomized Radhakrishna Bhakti, which connected the masses in regional language. Therefore, Bhakti propagated him, made worship of, यानी बिना चैतन्य महाप्रभु की टेक्निकलिटी के लाए इतनी खूबसूरती से पूरे के प्रश्न को जो है भक्ति की रास लीला के अंदर बता दिया गया है। ऐसा ही सिंपल, ऐसा ही भाव चाहिए। पूरे आंसर में भाव आ गया, कोई एक फैक्ट नहीं आया और आंसर भी पूरा हो गया। तो आई थिंक ये राइट अप्रोच है। Assess the importance of the accounts of the Chinese and Arab travelers in reconstruction of Indian history. Foreign travelers documented their journey, key discoveries, while India that formed the sources to history of India. Chinese travelers' evolution of society, Faiyan, Chandragupta Empire, so accounted the peace and religious tolerance in society, spread of Buddhism, nature of kingdom, whether more central or welfare state, was documented by Huan San, King Harshvardhan, patron of Buddhism. Education and advancement, for example, Nalanda became hotspot, as showcased by It Singh. Arab dwellers, Maurya age, Megasthenes Indica. Megasthenes was not a Mauryan, Megasthenes was not a Arab, he was a Greek, but then chalega. Economy, Ibn Battuta, accounts in Rihala emphasize upon importance of trade, local markets, metal currency. आप अल-बरूनी भी लिख देते. These form secondary sources as forms are divided from other primary Buddhist texts and can have biased element too. Therefore, Indian accounts, along with manuscript painting to deconstructing Indian history. तो यानी आंसर परिपूर्ण है, आंसर राइट ट्रैक के ऊपर है, आंसर ऑप्शनल जो हिस्ट्री जो बच्चा पढ़ता है उसको टक्कर देते हैं, क्लैरिटी लेके आए हैं। अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो बस वो थोड़ा सा क्लासिकल फॉर्म में लिखेगा, बाकी सब तो यही आएगा। तो बहुत बेहतरीन लिखा, अच्छा लिखा है, तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं चैतन्य महाप्रभु की तरह याद करके भाव लेके आ पा रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स ओके। गुप्ता काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। साहित्य, नगर योजना, मंदिर निर्माण, कलात्मक, रचनात्मक, तकनीकी कौशल। गुप्ता काल में सामाजिक ढांचे की आर्थिक परिवर्तन की झलक हमें उस समय के सिक्कों में देखने को मिलती है। उस समय की गाथा को दर्शाते हैं। उत्कृष्टता का प्रमाण उनकी निर्माण निपुणता है। सिक्के दिनार जारी किए गए, एक निश्चित आकृति के साथ, कौशल शैली, भारतीय राजा, भारतीय संस्कृति, वर्णन, कलात्मक उत्कृष्टता, विभिन्न प्रकार के सिक्के ज्यादा स्वर्ण धातु से बने। गुप्ता काल आर्थिक संपन्नता, लागू करने की प्रशासनिक सफलता को दर्शाता है। व्यापार के लिए प्रयोग किए सिक्कों विदेशी देशों के साथ संबंध दिखाता है। सांस्कृतिक आधार पर सिक्कों पर संगीत का वर्णन, वीणा, उसके बाद उसकी उनकी प्रतीकात्मकता और उपयोगिता बनाए रखने के लिए एक निश्चित ढांचे और टकसालों का प्रयोग किया गया। आई थिंक बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्वेश्चन जैसे पूछ रहा था कि आगे क्यों नहीं बने, तो अब आप ये बोलोगे कि ये सारी चीजें आगे मौजूद नहीं थी, तो तब आंसर पूरा हो जाता है। या फिर भारी गिरावट की आपने बात की है, लेकिन जैसे उन्होंने ऊपर बोला था कि भाई ये नहीं था, बाद में ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, वो भी एक तरीका है, वो ज्यादा सटीक है। तो 50% 60% आंसर सेम होना चाहिए, उसके बाद आधा पार्ट आप वो कर दो। सुस्पष्ट कीजिए कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय विखंडित राजतंत्र की छाया को किस प्रकार से ग्रसित कर रहा था, छाया से किस प्रकार ग्रसित था। भारत में राज्य तंत्र का विखंडन 17वीं शताब्दी के अंतर 28वीं आरंभ में विशेष घटनाओं से, विशेष घटना इज द कीवर्ड, विशेषता मुगल साम्राज्य की नीति में परिवर्तन और मराठा सिख समुदाय के साथ क्षेत्रीय सरदारों का स्वयं शासित प्रांत निर्माण करना, नवाबों का उदय, बंगाल में मुर्शीद अली खान, अवध में सराय वर्दी खान, सराय थोड़ी ना था, मतलब उसका नाम क्या था, अवध के जो नवाब थे, आपके सालार सफदरजंग बाद में आए, पहले थे नवाब वजीर, सिराज, मतलब सिराजुद्दौला बोल रहा हूँ, शुजाउद्दौला, उनसे पहले भी थे, उनके बाद भी थे। मैसूर में हैदर अली, सभी के द्वारा उदारवादी विस्तारवादी नीति तथा दृष्टिकोण के बाद भी केवल अपने राज्य की सुरक्षा तक सीमित रहना, अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था उसे ना पहचान पाना। 1907 में औरंगजेब की मृत्यु, 1939 में नादिर शाह द्वारा किए गए आक्रमण, हाँ ये पॉइंट भी अच्छा था कि वॉर हुए बार बार, वो भी हमें लिखना चाहिए। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी लेकिन पूछ रहा है वो। मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ, दक्कन सिमट कर राज्य केवल दिल्ली के आसपास तक घेरे में रह गया। बाहरी आक्रमणकारियों में अहमद शाह अब्दाली द्वारा 1760 में तीसरी पानीपत की लड़ाई की बात आपने की, लेकिन आंसर ये नहीं मांग रहा है। आंसर जो इंग्लिश में हमने लिखा था कि क्यों, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है कैसे, तो वो जो ऊपर पॉइंट से दे आर मोर रेलेवेंट एंड मोर डायरेक्ट, ये भी अच्छा है, लेकिन ये पूरी बात को बता नहीं रहा। अंग्रेज किस प्रकार से भारत को अच्छा करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे। करारबद्ध श्रमिकों को सस्ते श्रम की पूर्ति के लिए ले गए, बिल्कुल सही बात है। गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता है। मजदूर एग्रीमेंट बेस पर भारत से बाहर ले जाए गए, और शब्द का उच्चारण गलत होने के कारण गिरमिट एग्रीमेंट के
शब्द को गिरमिट बोला जाने पड़ा, ठीक बात है, जिसका मुख्य कारण था गुलामी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, वेरी गुड। उसके बाद श्रमिक को वेतन ना देना, ब्रिटेन द्वारा उनके वेतन को न्यूनतम श्रम पूर्ति के साथ बड़ी संख्या में मजदूरों को भारत से दूसरे प्रदेश ले जाया गया, जिसके कारण आज भी हमें उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, विश्व के तो ऊपर जो हमने कुछ बातें की कि कैसे उन्होंने हेरिटेज प्रिजर्व किया, कैसे कल्चर प्रिजर्व किया है, वो हमें लाना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु द्वारा भक्ति की एक नई दिशा का प्रारंभ किया गया, जिसके केंद्र में भक्ति, प्रेम और भाव थे। संकीर्तन, सामूहिक भजन गायन, नृत्यशाली भक्ति की मुख्य विशेषता, मूर्छित हो जाए, ये बहुत अच्छा लिखा, जिसमें वो मूर्छित होते थे, मूर्छित होकर मुद्रा प्राप्त करते थे और निरंतर कीर्तन करते रहते, तो करते करते बेहोश हो जाते थे, ये लिखना पड़ेगा। भक्ति को जाति धर्म, ये पॉइंट ऊपर भी आए थे। भजनों ने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव और वात्सल्य के रति तथा रति की भावना को प्रेरित किया। भक्ति शब्द सीमित ना रहकर समाज के सभी वर्गों, तो यानी दोनों के अंसरों में बराबर की अब टक्कर लग रही है बहुत सारी चीजों में। किसी भी स्थान के इतिहास का विस्तार और वर्णन वहां की बसी सभ्यता पुस्तक पांडुलिपि में असली विषय में किया गया है, जहां पर विदेशी नागरिक जो थोड़ा सा डायरेक्ट लिखते यार, जैसे इंग्लिश में था, सभ्यता की सामाजिक आर्थिक, तो यानी पहले तो पैराग्राफ में काम ही शुरू नहीं हुआ है। भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों की भागीदारी की गई, तो तीसरे में आगे चालू हो रहा है जब तक आधा अंतर खत्म हो गया। अरबी यात्रियों द्वारा भारत व्यापार, सांस्कृतिक संपर्क, क्षेत्रीय विविधता की चर्चा की गई। क्या है ये, दाल बासमती, अल बरूनी, अच्छा अल बरूनी किताब उल हिंद, जो भारत के राजनीतिक आर्थिक पहलुओं के, यह अच्छा पॉइंट है। गुप्ता काल में फाइयान, तो जो ऊपर स्ट्रक्चर मुझे लगा वो ज्यादा बेहतर है, आपने भी लिखा है, हर्षवर्धन हुएनसांग और रीति रिवाज, हर्षवर्धन द्वारा दास प्रथा, चांडाल, तो यानी ये अच्छा लिखा है, ये भी बहुत बढ़िया, लेकिन स्ट्रक्चर और पॉइंट्स के मामले में इंग्लिश को मैं 2 नंबर 1 नंबर फालतू देना चाहूंगा, कि इंग्लिश जिस प्रकार से लिखा गया है, जिस जिस कला और जिस वैभव के साथ अंग्रेजी के उत्तर प्रदर्शित हो रहे हैं, अब उस पर क्या फीडबैक देंगे, आप ही बोलिए। बोलिए मानसी जी, आप इंग्लिश में जो आंसर है, वो आंसर के एक पैराग्राफ, एक पॉइंट के साथ ही बहुत खूबसूरत एग्जांपल आता है, फिर पॉइंट, फिर एग्जांपल, फिर पॉइंट, फिर एग्जांपल, तो झड़ी लग जाती है, कैसे है ऐसा? हम्म। सर, ये कॉमन सेंस लगा के आ रहा है। तो कॉमन सिंपल। सेंस को और लगाया जाए, कॉमन सेंस का प्रयोग सब जगह किया जाए, वही हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। आप क्या कहते हैं दिव्या जी? सर, कम वर्ड्स का डायरेक्ट लिखना है सर। उत्तर लिखना है, ग्रंथ थोड़ी ना है, तुम पेन जी। लेती हो पूरा जो मन में आता है, पूरा मतलब कुछ ना है, थोड़ा सा लिखना है, बस बात खत्म। तो I think we must continue on the same lines. They are very light and they are very effortless answers. So even when you will write again, you will write something else, and that is true for everybody else. So let's write our answers. Let's compare with them these answers and get back with more correct answers, more correct approach, more correct writing, so as to get unsuccess with all the different programs and mentorship. The pedagogy that we try to share and try to even learn with time. Thank you very much. Let's get success with Ansarkari.